Okay, Ji. So the age of Pope. Before discussing the age of Pope, let us understand some basic things. Basic things about this age that are very common, easily available everywhere. So what are those? Well, yesterday we were discussing that in 1631 a person came whose name was John Dryden, and he remained in the limelight in this world till 1700. So we may say this time period is the age of Dryden. Then after Dryden, we have another person that in 1688 we have another name that is Alexander Pope, and he remained in this world till 1744. So Alexander Pope is another name. Exactly speaking, because in one MCQ, uh, there was a question mentioning the exact dates, like when he was born exactly. So 21st May is the date, 21st May 1688, when Alexander Pope was born. We may say Alexander Pope was a person who was a successful merchant, successful person who was very famous with the business as well. So Alexander Pope, a second to the line of new classicists, a person who carried forward the traditions of John Dryden. And after Alexander Pope, please note down another name. I'm not mentioning the dates at the moment, but if you need the dates, you can mention the dates as well. So I'm talking about Dr. Samuel Johnson. Samuel Johnson was born in 1709 and he remained in the limelight till 1784. He was the third person, a very important person who said sometimes, we call him Dr. Samuel Johnson. Or we have another name, Samuel the lawgiver. The lawgiver means a person who gives you law, who, who instructs you what to do and what not to do. So these three names, these three people, they're very important whenever we are talking about new classicism. So new classicism. But before all these things, new classicism and all other ideas, something is important to mention. And what is that? Well, we can say Alexander Pope, because today's topic is Alexander Pope. So Alexander Pope came in front of us in the beginning of 18th century. 18th century के आगाज में हमारे पास जो नेम आता है, that is Alexander Pope. Like what was with Dryden? Dryden came in the beginning of, obviously in the half of, he born in 1631, there was a 17th century, but obviously when he was contributing, that was the second half of the 17th century. So till now we have discussed like Alexander Pope came in the early half of the 18th century and Dryden was contributing in 17th century. Similarly, Dr. Samuel Johnson was contributing in the end of the 18th century. So these three names are important before proceeding further with today's session. When these people came, these three people, three names, when I was a child, I used to read stories in Namai Waqt or Akhbar Jahan. There was like a story, like three women, three stories, तीन औरतें, तीन कहानियां. So हमारे पास कुछ ऐसा ही सीन है इन लोगों के साथ जो है, जैसे ये लोग आते हैं मंजरे आम पे, लिटरेचर को बदल के रख दिया इन लोगों ने. लिटरेचर बदलना शुरू हो गया. लिटरेचर सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक नया मोड़ ले लिया, एक नए ढंग से चलना शुरू हो गया. अगर हम किस्सा मुख्तसर दो लफ्जों में बात करें, कहानी का आगाज ड्राइडन से शुरू हुआ और उसको खात्मे पे लेके गया जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ठीक है, लेकिन उस दौरान जिसने क्लाइमेक्स पे इसको लेके गया, जिसने इसको अरूज दिया, जिसने इसको बुलंदी पे लेके गया, वो हमारे पास अलेक्जेंडर पोप है. अलेक्जेंडर पोप के मुतालिक ये कहा जाता है, बल्कि इसको बाद में डिस्कस करते हैं. बट बिफोर डिस्कसिंग दिस एज, लाइक वी आर डिस्कसिंग द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, कुछ इंसिडेंट्स को समझना जरूरी है.
हम ये नहीं कह सकते जैसे कि कोई भी एज है उसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होते हैं, उससे पीछे कुछ नहीं होते हैं। तो हुजूर वाला, हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम इस बात को समझें कि जब अलेक्जेंडर पोप हमारे पास मंज़र-ए-आम पे आते हैं, तब स्टोरी थी क्या? कौन से ऐसे मनाज़िर थे? कोई ना कोई राइटर तो होगा, ड्राइडन के अलावा भी जो लिख रहा था। किसने इसको एक तनकीद निगार बनाया? What were the reasons that he was a satirical writer? आप your writers, I always say, they are not contributing in vacuum. They are a part of your society. You cannot detach literature from your life. Whatever is going on in the books, that is because मंटो ने कहा था कि मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, मैं अपने मुल्क का सबसे बड़ा फसादी हूँ। सो 3 इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास इंसिडेंट्स हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंसिडेंट कल भी बात हुई थी, लेकिन इस एज के लिए भी जिसने इस एज को, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप को सबसे ज़्यादा ओरिएंटेशन में मदद दी, देयर वाज़ मिल्टन। मिल्टन मिल्टन आज ज़रा जल्दी के साथ मैं इन चीज़ों को बात करूँगा। पहले नंबर पर मिल्टन था, दूसरे नंबर पर मेटाफिज़िकल। एक नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। उन नोट्स के अंदर जो हैं वो इन मेटाफिज़िकल्स और तमाम बेसिक डेफिनिशंस जो हैं वो बताई गई हैं। एक एलिमेंट जॉन मिल्टन की पोएट्री थी। मिल्टन वही हैं जो प्यूरिटन थे। मिल्टन वही हैं जिन्होंने पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी। मिल्टन वही हैं जो ब्लाइंड हुए, पैराडाइज़ रीगेन्ड लिखी। मिल्टन वही हैं जिनका चार्ल्स द सेकंड ने माफ़ किया था, अगरचे ये ओलिवर क्रॉमवेल के दोस्त। मेटाफिज़िकल पोएट, बियॉन्ड फिज़िक्स, जो विट का इस्तेमाल करते थे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ऐसे आइडियल्स का इस्तेमाल करते थे जो हमारी सोच से बाहर है। 2 ऑपोज़िट चीज़ों का कंपैरिज़न कर देते थे, लाइक बॉडी एंड सोल, लाइक अर्थ एंड हेवन, इस तरह की चीज़ों का। तो इस किस्म के पोएट जो हैं वो मौजूद थे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे थी, जिसने अलेक्जेंडर पोप को मुतासिर किया, वो क्विलियर पोएट्स की एक्जिस्टेंस से। क्विलियर पोएट्स की एक्जिस्टेंस से मुराद वो जिंदा नहीं थे, उनका लिटरेचर था। जैसे आज भी लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लिटरेचर जिंदा था, तो इन चीज़ों ने इसको मुतासिर किया। इन तमाम लोगों के दरमियान, डंट के दरमियान, हैरिक के दरमियान, मिल्टन के दरमियान, यानी कि मिल्टन, मेटाफिज़िकल और क्विलियर के दरमियान एक चीज़ कॉमन थी। एक चीज़ इन सब के अंदर कॉमन थी। जैसे कि हमारे पास क्विलियर है, हम क्विलियर जानते हैं कि क्विलियर पोएट वो वाले पोएट थे जिन्होंने चार्ल्स द फर्स्ट को सपोर्ट किया। ऐसे पोएट्स थे जो बादशाह वक्त के हक में लिखा करते थे, उन्हें हम क्विलियर पोएट कहते हैं। ज़्यादा सादा कर लेते हैं, एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने ये कहा कि जो आपने कह दिया वही सच है, वही हक है, वो क्विलियर हैं। एक छोटा सा जोक इससे रिलेटेड मुझे याद आ गया, मैं आपको गोश-गुज़ार करके आगे बढ़ूँगा। एक दफ़ा एक मीटिंग हो रही थी, प्रमोशन की मीटिंग हो रही थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक बंदे से पूछा, ग्लास के अंदर उसने एक पत्थर के टुकड़े को, जो बॉस थे उन्होंने फेंका है नीचे, और पत्थर के टुकड़े के अंदर फेंकने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि ये पत्थर नीचे क्यों गया? पानी के ग्लास में नीचे क्यों गिर गया? कइयों ने बताया कि कशिश शकल का मामला है इसलिए नीचे चला गया। कइयों ने कहा कि हज़ूर वाला मुझे लगता है कि पानी जो है वो इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन एक साहब यूँ बोले कि हम तो ये जानते हैं कि जिसे आपने छोड़ा वो डूब गया। ये पत्थर डूबने की वज़ह ये है कि आपने छोड़ा। सो ये क्विलियर पोएट थे, जिन्हें लगता था कि हमने चार्ल्स द फर्स्ट को छोड़ा, चार्ल्स द फर्स्ट जिसको छोड़ा वो डूब गया। सो आप इससे इसको याद रख सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास 3 अहम इंसिडेंट्स थे। इन इंसिडेंट्स, इन तीनों के दरमियान, तीनों के लिटरेचर के दरमियान एक चीज़ कॉमन थी, और वो चीज़ कॉमन थी कंज़र्वेटिज़्म। ये तीनों के तीनों कंज़र्वेटिव थे, तीनों के तीनों क्लासिकल थे। हमें ये पता चलता है कि तीनों जो हैं वो किसी न किसी तरह से लॉयल थे। लॉयल से क्या मुराद है? इनकी वफ़ादारियाँ किसी लिटरेचर के साथ थी। वेल, लेट अस डिस्कस अबाउट दीज़ लॉयल्टीज़। वी नो अबाउट द क्विलियर पोएट्स। इनकी वफ़ादारियाँ तो चार्ल्स द फर्स्ट के साथ थी। मिल्टन की किसके साथ थी? मेटाफिज़िकल्स के साथ किसके साथ थी? जॉन डन और मिल्टन जो हैं, या मेटाफिज़िक्स जो हैं, इनकी लॉयल्टीज़ थी क्रिश्चियनिटी के साथ। इनकी लॉयल्टीज़ थी रिलीजन के साथ। तो ये इन तीनों के दरमियान थी। एक चीज़ कॉमन थी और वो ये सारे के सारे कंज़र्वेटिव थे। बट दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। वो हम कहते हैं ना, हमारे खान साहब यू टर्न अक्सर ले लेते हैं। सो अब लिटरेचर की दुनिया में एक यू टर्न आ जाता है, और ये यू टर्न कोई आसानी से नहीं आता है।
what is happening? This U-turn is very amazing. वो चीजें आना शुरू हो गई हैं. अच्छा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आजम, हाँ, मैंने आपको म्यूट कर दिया है. सो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, अगर कोई आप हेल्दी करना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ. वी हैव ऑब्वियसली a क्वेश्चन आंसर सेशन, सो आप उसमें जो है वो पूछ सकते हैं. ओके जी. सो अब यूटर्न जो हमारे पास आता है, अब लिटरेचर का सारा एक नया अंदाज बदलना शुरू हो जाता है. ये तीनों लोगों के दरमियान एक चीज से क्लासिसिज्म या ये कंजर्वेटिव थे, लेकिन अब जो है वो हमारे पास जो है जो जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया लिटरेचर आ रहा है, वो कुछ इस तरह से थे कि जिन्होंने इंसान को रिलीजन की बाउंडिंग से दूर करना शुरू कर दिया. सो रिलीजन वाज नॉट द ऑर्डर ऑफ दैट. सो व्हाट वाज हैपनिंग दिस टाइम? वी हैव साइंटिस्ट. So these scientists, what they were doing, these scientists, they were proving a single thing. They were proving that the human being, they are not the voice of the God. इंसान कोई खुदा का voice नहीं है, but they have another belief. So this time we have social scientists, and these social scientists, they were proving the same. So they were writing the literature that was different from all those literatures, all those books that were already there. In fact, to cut the long story short, they were proving a very simple statement that man is a social animal, so there is no need to focus on the heavens. If you want to study this very species that is known as human being, try to focus on human beings, because proper study of mankind is man. So I'm going to resize the font size. Okay, so no, they were focusing just on a single topic. और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था मैन एंड सोसाइटी. गए दिनों की बातें हैं कि इंसान को समझा जाता था कि खुदा के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा किसी के ऊपर फोकस किया गया, ये दुनिया जिसके लिए बनाई गई है, वो इंसान है. बट अब कभी भी सोसाइटी में उसके स्टेटस को डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया था. अब ये लोग ये कहा करते थे कि फिलिप सिडनी का, जो आपको पता है कि पहले जमाने में रेनेसांस के दौर में लिखा करता था, फिलिप सिडनी ने एक कोटेशन लिखी थी. फिलिप सिडनी की कोटेशन है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला से. अभी मैं आपके सामने वो कोटेशन लिख रहा हूँ. उस कोटेशन में वो ये लोग इस चीज को फॉलो किया करते थे. बाइटिंग माय टॉरेंट पेन, बीटिंग माई सेल्फ अ स्पाइट, फूल सेड म्यूज टू मी, लुक इन दाई हार्ट एंड राइट. दिस कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर सेइंग कि अब आप जो म्यूजिक की तरफ देखते हैं कि मैंने कुछ काम लिखना है, मैंने कोई काम करना है, कोई गॉड की तरफ से. Okay, Akbar Khan, I am going to write that quotation once again, but obviously after this, let me explain this quotation. So, अब यहाँ पे ये बहस ये छिड़ गई कि हजूर वाला, जब अब जो है कि आप आसमानों की तरफ ना देखें. Fool, said my muse to me, look in thy heart and write. अपने दिल के अंदर देखो, अपने अंदर देखो और लिखना शुरू कर दो. कोई जरूरत नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी हस्तियों की तरफ देखना शुरू कर दो कि मुझे गॉड जो है वो गाइड करेंगे, मैं फिर ही लिखना चाहूंगा. ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो आपको पता है, जो कि कलेक्शन है सोनेट्स की, सर फिलिप सिडनी की लिखी हुई, ये उसमें से मैंने कोटेशन जो है वो आपके सामने शेयर की है. So हमारा जो main focus है, that is on the second line of this quotation. Fool, said my muse to me, look in thy heart and write. अब आपको ये समझना है कि if you want to understand this species that is known as human being, there is no need to focus on the heavens. वापिस आए. You will have to change your outlook. अब कोई जरूरत नहीं है इधर उधर देखने की. Just try to change your outlook. आउटलुक चेंज करने के बाद क्या होगा? आउटलुक चेंज करने के बाद आपको अपनी सोशल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है. आप इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. आप इंसान को आइसोलेशन के अंदर स्टडी नहीं कर सकते हैं. ये इस एज की सबसे बड़ी बात थी जो कि उन्होंने बताया कि सिडनी जो है वो म्यूज से मदद मांगता है. आप जानते हैं कि ये इन्वोक किया करते थे कि मुझे मदद करो लिखने में, जैसे मिल्टन ने भी म्यूजिक को कॉल किया. बट ये रिस्पॉन्स क्या मिला? यू आर द फूल. पहले नंबर पे सेड माय म्यूज टू मी, लुक इन दाई हार्ट एंड राइट. बाहर देखने की बजाय अंदर देखो. बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली है.
यानी कि अगर आप ये समझें कि द हिस्ट्री, द फिलॉसफी, द वेरी आइडिया दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस सेकंड कोटेशन इज दैट अब जो हमारे पास मूवमेंट मूव हो रही है वो इंडिविजुअलिज्म से, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो है वो वहां से मूव हो रही है, आपकी आउटलुक से इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ रही है कि अपने अंदर देखें। So this time your individualism is important. So हमें ये समझ में आता है। Let me paste all these things in the chat box and let's move on with that. Okay जी, ये बातें उस जमाने की हैं जब फिलिप सिडनी साहब लिखा करते थे, लेकिन उसके बाद हम अब बातें कर रहे हैं 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से कौन सी मुराद है? ड्राइडन की एज जो है वो। ड्राइडन के बाद जो है हम जानते हैं कि ड्राइडन की एज में हमारे पास काफी राइटर आए। निकोलस कॉपरनिकस जो है वो जैसे हमारे पास लोग आते हैं। NI, let me write down the name of this scientist, बड़ा important name है, important in the sense कि इसने आपके सामने जो है बहुत अजीम आइडियाज बताए। इसके years भी important है because once they were a part of the MCQs 1564 till 1642. For the very first time, this scientist, this person, gave a new idea that he explored the universe and the world. तो अब जो है जो चीजें चेंज होना शुरू हुई है वो इस तरह से तब्दील हो रही हैं कि यूनिवर्सल वर्ल्ड पर बातें होना शुरू हो गई। अब इन लोगों के लिए एज ऑफ, जब ये कहानी वहां से यानी कि 1642 से शुरू होती होती अलेक्जेंडर पोप की एज तक आती है, तो हमारे पास एक ही चीज आता है कि रिलेशनशिप जो है मैन को, मैन जो है जो कि अपने आप को वॉइस समझता है कि मैं गॉड का वॉइस हूँ, वो कोई वॉइस नहीं है, इसको लिमिटाइज किया जाए, इसके ऊपर लिमिट्स पुट की जाए। लिमिट्स पुट क्या किया जाए कि इसको बताया जाए यू आर नॉट अ वॉइस ऑफ गॉड, यू आर सपोज टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, you are supposed to remain in this planet, on this planet, so there is no need to go anywhere. फोकस करें इसी दुनिया के ऊपर, फोकस करें। सो फिर जब आपका फोकस किसी को लिमिटाइज करना है, जब आपका फोकस किसी के ऊपर पाबंदियां लगाना है, जब आपका फोकस ये है कि हमने किसी को रोकना है, देन आपके पास एक फॉर्म वजूद में आती है जिसे आप सेटायर कहते हैं। सेटायर जो है ये फिर वजूद में आती है। हमारे पास सेटायर जो है, सेटायर के वजूद में आने से हमारे पास कुछ और चीज़ें भी वजूद में आती हैं कि सारा का सारा लिटरेचर बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है। और हमारे पास सेटायर की काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं। जॉर्ज ऑरवेल की मैं अक्सर बात करता हूँ कि एनिमल फॉर्म इज़ द एग्जांपल ऑफ सैटिरिकल वर्क। बट व्हाट इज़ दिस सेटायर? सेटायर होती क्या है? इस पे बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ एक ऐसा काम जो इंसान के ऊपर रिडिक्यूल करे, किसी के ऊपर उसको जो है किसी का मजाक उड़ाए, या हम ये कहें कि जब हम कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे हमने किसी की फुलिशनेस को जाहिर करना है, वो हमारे पास सटायर कहलाता है। We can say a literary work holding up human vices and foolish. When you are going to talk about the foolish of a person, that is satire. Satire is not going to highlight about the good qualities of a person, but it is highlighting, hurting towards the foolish only. So ये हमारे पास सटायर है। अब हमारे पास जो सटायर आती है ये शुरू हमारे पास तो हो गई थी ड्राइडन के ज़माने से। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया था आज के सेशन के आगाज़ में, क्लाइमैक्स इसको इसी टेन्योर में आके मिला था। कौन सा टेन्योर? अलेक्जेंडर पोप का। और मज़े की बात ये है कि पोप और इसके जितने भी कंटेम्परेरी राइटर्स सारे के सारे एक ही फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है हमारे पास सटायर। अलमिया देखिए, the worst situation is that these people, they're using satire. Like they're not mentioning any event, whatever is going on in London at that time. They have no concern with that. They're just focusing on a single thing, a single form of literature, that is satire. Rather, they gave you another thing, that is manners. They are not concerned with the literature, like they are writing something for the betterment of the people, but they're giving the manners. Manners of what? Manners of living. They're giving you the manners. Manners of what? Manners of society. That's the strangest thing, because for the very first time they're writing like these things. बट हमने ये बात तो कर दी, लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ
लिटरेचर की दुनिया में whenever you are going to quote anything, कोई भी मिसाल देते हैं उसे प्रूव करें। अलेक्जेंडर पोप की बड़ी मशहूर ज़माना एक नज़्म है जिसे पढ़ा होगा आपने, Why it is not working, the rape of the lock की बात कर रहा हूँ। I'm sure कि rape of the lock, because it is a part of the syllabus of every university, so most of the students जो हैं they are well aware of this. So the rape of the lock, हमें ये जानना है कि rape of the lock से ये लोग कर क्या रहे थे, ये बता क्या रहे थे। What is happening in the rape of the lock? A very small incident is there. And what is that small incident? Someone cut down the lock of the woman, lock of the hair. So what he is doing, he is mentioning all the things, he is telling us the story, he is saying, okay, like there is a very minor fight, very minor quarrel is going on, fight between two families. But what Alexander Pope is doing, Alexander Pope क्या बता रहा है उसमें? He is not talking about the very uh, grand ideas. He is telling you something, छोटी सी चीज को मोक एपिक में बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बढ़ा चढ़ा के उसको बताना चाह रहा है। आप देखें, यही हमें मिलता है। ये कोई एलियट की ओडिसी नहीं है जिसके अंदर, या ये कोई ब्यूवुल्फ नहीं है, या ये कोई मुसद्दस हाली नहीं है, ये कोई इकबाल का लिखा हुआ शिकवा या जवाबी शिकवा नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो अजीम एपिक पोएम्स, मोक एपिक है। ये लोग जो चीजें दे रहे हैं वो हीरोइक पोइट्री है। हीरोइक इन द सेंस कि समझा तो ये जाता है कि हीरोइक पोइट्री का ये मकसद है कि आपने जो भी चीजें समझानी है, बतानी है, उसमें किसी न किसी को आपने एलिवेट किया है, किसी हीरो के अंदाज को उठाया है, उसे ऊपर लेके चले गए हैं। जैसा कि बेवुल्फ में हमारे अंदर हो रहा है, एक स्टोरी हमारे पास जो है वो चल रही है और उस स्टोरी से हम जो है वो प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं। बट इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया, एंड देयर वाज अ सटायर। सो दे आर डूइंग द सैटिरिकल वर्क। छोटी सी चीज को उठाया, बुलंदी पे पहुंचा दिया। No sensible man is going to work on the rape of the lock in the sense that, okay, someone like, no, the manners were not trivial. Was the manner? No, the manners were not trivial, Akbar Khan, but they never been the focus. Like, they, okay, we are going to answer this question. मैं topic से हट जाऊंगा. I'm going to answer this. And it is not just in a single book. Pope is doing the same. Pope is doing the same in his another book, and the name of that book is The Dunciad. That book was published in somewhere 1727. So the thing that he is doing is that in Dunciad he is changing the name. जैसे अखबारों के अंदर किसी का इश्तिहारी रिश्ता देते हैं ना, तो नाम बदल देते हैं। So what he is doing, he is criticizing, he is doing satire on the poets, on the rivals, who are on the contemporary poets, but he is changing their name. So एक एपिक जो है, जो कि बड़ी अजीम रवायत थी, he is changing the traditions of the epics and he is using them and he is making them for mock epic. As I was mentioning yesterday, you do not read epic for fun. You do not read epic because you want to laugh. You do not read epic to amuse yourself. Because epic is not something like this. Okay. Yusuf, if for the second time I got a message, you are requested to please share your registration number. Otherwise, the IT guy is going to remove you from the class. You're requested to share your registration number. Otherwise, I don't know, like, what is wrong with you? Why you're not sharing? Do share it with the host. Okay, so yes, we were okay. So he's doing this, and ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे स्टेप लेते हैं। मैं रेप ऑफ द लॉक से मैक्सिमम रेफरेंसेस को कोट करूंगा, बिकॉज रेप ऑफ द लॉक को दो वजह से बड़ी फोकियत हासिल है। एक तो आपने पढ़ी हुई है, दूसरा जो है ये एक स्टोरी टाइप है। अब रेप ऑफ द लॉक के अंदर क्या होता है? डू यू फील व्हेन वी आर सेइंग like it's rape of the lock, then like the word rape gives us the hint, gives us the very hint
like something is wrong with a female. What is meant by rape? Rape wrong done to a woman. But what the Pope is doing, they're using high elite class words. They're using rape to focus, like, okay, something great is going on, something very great is going on. But ये मैंने 5वीं दफा म्यूट किया है आपको जरिस्तान साहिब। मेरी गुजारिश है कि अगर आप कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट ना किया कीजिए। हमारे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, आपकी तमाम जो आवाज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। आप अपनी फैमिली से या किसी से भी बात कर रहे होते हैं, वो फिर लेटर ऑन हमारे सेशंस का हिस्सा बनते हैं। तो आपसे ये 5वीं दफ़ा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अगर मुमकिन हो सके तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट ना कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस गुजारिश को आखिरी गुजारिश के तौर पर ट्रीट कीजिए, तो बहुत नवाजिश होगी आपकी। सो जी, मोक एपिक्स जो हैं, हम जो है रीप ऑफ द लॉक में हम देखते हैं नथिंग इज गोइंग डाउन, लाइक nobody is going to do anything wrong with any female, but he is using these type of words, and these words are the very strongest words. So strongest in the sense, like, they're just going to cut down the lock, but still we are amused. So nobody is going to rape any woman, God forbid, in that particular book. So he's blowing something out of a proportion. You know, हमारे मोहल्ले में हमारे जानने वाले लोग ऐसे होते हैं जो they're very you know adept in, very expert in making mountain out of a molehill, जो कि राई का पहाड़ बना देते हैं. So the thing is that ये लोग जो काम कर रहे थे, no, whatever I'm going to say, जी प्लीज सर, प्लीज डेंसिटी रिपीट करेंगे जी। ये एक पोएम है, ये एक इसकी बुक है अलेक्जेंडर पोप की, जो 1727 में पब्लिश हुई थी। इसमें क्रिटिसाइज जो है वो किया गया था राइवल राइटर्स को। इसमें उनको बताया गया था, इसने नेम चेंज करके अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स के ऊपर तनकीद की थी। और मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अलेक्जेंडर पोप जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये कर रहा था कि पर्सनल जो इसकी पर्सनलाइजेशन थी उनको ये सब के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा था, कि अपनी सैट्रिकल वर्क को नाम बदल के अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा था। सो माहम, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा? प्लीज लीव दिस मैसेज इन द चैट बॉक्स। सो अब because the style, okay Yusuf, thank you. So the subject is, ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास जो है वो ये अभी जो है लाइक द कटिंग ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, that is not heroic, because nobody is going to do anything. The subject is very trivial, the subject is not heroic, but the style, this style is, you know, is heroic. Alexander Pope is not only using the heroic style, but he is using all the machinery, all the devices that is a part of a real epic. लाइक जो ब्यूवुल्फ जैसी बड़ी एपिक है उसी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इनसे हमें ये समझ में आता है कि इस एज के अंदर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। इस एज के राइटर्स जो लिख रहे थे वो ज्यादा फोकस कर रहे थे कि हमें अपने स्टाइल को ज्यादा फोकस करना है, हमें जो दिखाना है वो ज्यादा फोकस करना है। हमें मौजू, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ट्रिवियल भी है, वो बड़ा छोटा सा भी है, हमें भले ही सेटायर से काम लेना पड़े, हमें भले ही ह्यूमर को इंक्लूड करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हमने इन चीजों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनकी हमें राइटिंग्स में नजर आता है। मजे की बात है, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अलेक्जेंडर पोप रोट essay on criticism. So from this word essay, it comes in our mind. The essay means perhaps जो essays हैं, कुछ ऐसे essays हैं जो कि my voice is not clear. Okay, it is clear now. Essay hai, but strange, it's not an essay, it's poem in rhymed form. So what Alexander Pope is doing, you know, when a joker is wearing the dress of a king, so इसके जो ड्रेसेस हैं, इसके जो काम हैं,
वो ऐसे हैं कि when we read that particular crimination, that particular book, हमें लगता है कि वो काम बहुत अजीम है, बट जब हम उसके सब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें पता लगता है कि ये तो बहुत घटिया सा लिखा हुआ है. It is something that is not common with every person. So, like, is a joker is wearing the dress of a king. That's very strange. Like the essays, they are in the poetic form, and he is not only writing essays in poetry, but he is doing the same in the essays on man. He wrote even on man, and once again, essays on man is once again in poetic form. Let me discuss something, just 2 lines with you from this essay on man. So I'm just publishing the notes in your WhatsApp group. Okay. So just give me a moment because I need to copy the exact quotations. All right, here we go. Farhat beta, please go on with the reading. Please give it a reading. Farhat is with us. My voice is breaking up. Farhat is saying my voice is breaking up. Is it so? Please, the remaining participants should read the message. My voice is breaking up. Is it same with anyone? Okay, it's fine now. Voice is okay. Okay, Ji. Thank you so much Ji, for mentioning and for sharing your feedback. Okay, Ji. So, okay, perhaps Farhat is not with us. अलेक्जेंडर पोप के मैंने एक ऐसे ऑन मैन से कुछ लाइनें उठाई हैं. हमें सिर्फ इस लाइनों में से ये जो एंड पे दी गई कुछ लाइनें हैं, हमें इन पे फोकस करना है. सो who else? Akbar, please go on and read these lines. Should such a man to fawn to rule and on? Sir, am I audible? Yes, you are perfectly audible. Please go on. Peace to all such, but were there one whose fires true genius kindles. Sir, my daughter must No issues, no issues. All right, be audible just too. take She your is time. screaming like anything. Just read these lines that are in front of you. There's no need to read the remaining lines. Okay, should such a man too fawn to rule alone, bear like the Turk, no brother near the throne? Okay, जी. So अब आपने एक चीज देखा है. Alexander Pope, should such a man to fawn to rule alone, bear like the Turk, no brother near the throne. एक चीज तो आपने देखी. Whatever he was writing, he was using the rhyming there. So every single word that is in rhyming. So यहाँ पे हमें पोप जो है वो what he is doing, he is basically balancing the oppositions. To fawn to rule alone, no brother near the throne. इसमें opposites को balance कर रहा है. आसान कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं. जब आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा होता है तो वो बढ़ता बढ़ता डिस्कॉर्ड की तरफ चला जाता है. तो ये अपने पावर ऑफ वर्ड से गैर अहम चीजों को, गैर जरूरी चीजों को बहुत जरूरी बना रहा है. ये ऐसे मैन में हमें ये बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी. ये सारे का सारा बड़े बड़े अल्फाज को इस्तेमाल करके छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखा देना, जैसा कि रेप ऑफ द लॉक में है. ये न्यू क्लासिकल का तर्ज अमल था. दे वर डूइंग दिस सेम. एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग वन, मेरे जहन में आ गया. सो लेट मी जस्ट टेक दोज वर्ड्स दैट विल